Once again, good morning to all. Today we are going to discuss about the statistics module. So I'm going to show you how you can use statistics module. No problem, Manthan. If you have any problem, so I have one remedy. Either तो you can come to my home or online classes. आप online मुझसे पूछ लो, कोई problem नहीं है. Anytime you can ask. ठीक है? तो yes, I was discussing about the statistics module. क्या होता है statistics में? We have studied in mathematics also. In statistics, we have learned three things: mean, median, and mode. These three things. So if you want to find out the median, mean, and mode of a particular number, so what you can do, you can import a module that is statistics. Okay, it is imported now. Let's say I'm going to make a list here, and I'm going to make 2-3 numbers only. Only this 4-6 numbers I'm going to make. And how you can find out module name? Dot क्या निकालना है, मीडियम निकालना है, तो मीडियन निकाल रहे हैं, DIAN, median, and then here I'm going to put my LI. Fine. तो इसने कुछ एरर दे दी है. Statistics has no attribute median. Oh, the spelling of median is wrong. Statistics dot DIAN, LI, and then enter. It has given me the median of 2468 is 5.0 और ये obvious भी है, ठीक है, हमें पता भी है. Then I'm going to make out statistics dot mode. Mode क्या होता है? जो सबसे ज्यादा occurring number होता है ना. And let's say I'm going to write LI, so it is true. हम जो भी mode का formula use करते हैं उसके basis पे उसने मुझे 2 दे दिया. Statistics dot mean. Mean is sum of all the observation by total number of observation. तो 2, 4, 6, 8, 10 कितना हो गया? 20, 20 by 4, 5. Fine. So this is how you can work on statistics module. 3 modules we have covered in our syllabus: math module, import, random module, and statistics module. Now let's say I'm going to open my white screen here and a second. Just give me a minute. So let's say there's a question like I have imported math module, and then what I'm going to do is I'm going to write an expression and you will tell me what that expression is actually. Okay, like I'm writing math dot cos x by math dot tan x plus x. So are you able to identify what this equation is exactly saying? क्या ये equation है? मेरे mouse को क्या होगा? It is a very simple equation. Basically, क्या हो रहा है इसमें? आपने import करा math module in which you have written cos x by tan x plus x. तो इसकी equation कैसे होगी? इसकी equation कुछ इस तरीके से होगी. Cos x divided by tan x plus x. ये होगा ना? Cos x by tan x plus x. So this will be the equation of this question. तो बाई चांस एग्जाम में आ सकता है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसी होगी, तो दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इन दिस काइंड ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस will also come. Fine. So let's say I have one more question. See if anybody is having any problem, so please ask in between. फिर जब टॉपिक निकल जाता है फिर पूछते तो प्रॉब्लम होती है. Yesterday we were doing about the random modules.
है ना, रैंडम मॉड्यूल्स के हमने एक दो क्वेश्चन किए थे। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है, ये करता है 0.0 से लेकर 1.0 का कोई भी नंबर इन बिटवीन द नंबर जनरेट करता है, फ्रॉम 0.0 टू 1.0 डॉट रैंडम फंक्शन। ठीक। अब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इसी में ही रेंज देनी है, इसमें ही मुझे क्या करना है, रेंज देना है। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज, जरा अच्छे से समझना, रैंडम डॉट रैंडम, यहाँ पर क्या करना है, आपने रेंज देनी है। आप लोगों ने भी शुरू कर दिया ये काम, तो क्लियर भी नहीं कर सकती। चलो, रैंडम डॉट रैंडम, हम अंदर कुछ नहीं लिख सकते, अगर मैंने अंदर कोई भी रेंज दी तो एरर देगा। सो आप क्या लिख सकते हो, ओके, मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट सपोज मैंने दी 20, ये जो इसकी मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20, एंड मिनिमम रेंज होनी चाहिए इसकी, लेट्स से 5। so this is upper limit is 20 and the lower limit is 5, and now I'm going to add the lower limit। फिर उसी लोअर लिमिट को क्या करना है, ऐड करना है। इन दिस वे यू कैन गिव अ रेंज। क्या हुआ है देखो, इसमें फिर समझ लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसी लिमिट को लोअर लिमिट को हमें क्या करना है, ऐड भी करना है। इन दैट वे क्या होगा, आपकी जो ये रैंडम नंबर होगा वो जनरेट करेगा 5 से लेकर 20 के बीच के नंबर। ठीक, इसको एक बार करके देख लेते हैं। मैंने इंपोर्ट किया रैंडम मॉड्यूल, so I'm going to print random dot random and bracket close, multiply by upper limit is 20, हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ना, वो मल्टीप्लिकेशन ले लेगा, अपर लिमिट इज 20, लोअर लिमिट इज 5 एंड देन प्लस 5। ठीक, और ब्रैकेट बंद। तो यू कैन सी उसने 20 और 5 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो उसको क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। ठीक, हर बार एक नया नंबर आ रहा है, एंड इट कैन बी अ फ्लोटिंग नंबर ऑलवेज। फ्लोटिंग का मतलब ये नहीं है कि 5 नहीं आएगा कभी भी, 5.0 आएगा। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, मैंने शायद, I guess it is visible now. So what I have done here, first of all, I have imported random module. Then what I have written, print random dot random. The upper limit is 20, the lower limit is 5, and then I have added the lower limit. पहले माइनस किया और फिर प्लस किया, एक तरीके से एक बार माइनस और एक बार प्लस किया। व्हेन आई यूज दिस, तो हर बार उसने क्या किया, एक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके दे दिया। मैं यहाँ पर फिर से कंट्रोल भी कर रही हूँ, एंड देन अगेन अ रैंडम नंबर। ठीक, सो इट विल जनरेट लाइक 10 ऑल्सो, 10 भी जनरेट करेगा बट 10.0 देगा वो। ठीक है, नंदिनी वर्मा, जस्ट अ सेकेंड, by 5, so what will happen, 100 को 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 20, 500 को 100 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 100। सो रेंज क्या हो गई मेरी एग्जैक्टली, 20 एंड 100। so let's say, will it 79 पॉइंट दिस 33, 20 और 100 थी ना रेंज मेरी, तो इसी के बीच के नंबर वो जनरेट करेगा। ओके, बट वन प्रॉब्लम इज देयर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमने तो बोला था कि वही रैंड इंट, इंट तो क्या करता है, हमेशा इंटीजर नंबर जनरेट करता है, राइट, बट दिस टाइम व्हाई इट इज displaying floating number, anybody can tell क्यों ये फ्लोटिंग नंबर जनरेट कर रहा है। कोई तो बोलो, मंथन चलो पिकअप।
अरे बाबा हमने डिवाइड किया है, डिवाइड हमेशा होल नंबर थोड़ी ना देता है। लेट से नंबर आ गया 23, 23 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में नंबर ही तो आएगा। दैट इज वाई वो पॉइंट में नंबर दे रहा है, और कोई रीजन नहीं है। इंट है मानती हूँ, रैंडम इंट है। वो क्या कर रहा है, एक इंटीजर नंबर जनरेट करता है। तो जब उसने एक इंटीजर नंबर जनरेट किया, यहाँ तक का फंक्शन हो गया पहले, ठीक। लेट्स से 100 और 500 की बात अगर हम करें, इसके बीच में किसने नंबर जनरेट किया, 120। 120 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो एक नंबर जनरेट हुआ। इन द सेम वे उसने जनरेट किया 131। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, 131 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में तो नंबर आना है, राइट। सो डिवीजन ऑलवेज गिव्स द आंसर इन फ्लोटिंग नंबर, दैट इज व्हाई यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर अवेलेबल है, बाकी देयर इज नो अदर रीजन। ओके, then I have one more question for you. चलो एक और ले लेते हैं, जरा ट्राई करना इस बारी आउटपुट निकालने की। रैंडम डॉट रैंड एंड my lower limit is 500 and my upper limit is 900, and I am going to subtract 500 here. So what will be the range of the output? I think this time you can tell. All should reply in the chat box फटाफट से। हो जाओ फटाफट, क्या रेंज आएगी इस बारी? Okay, I got one replies here. Okay, very much correct. Panthan, Chirag, Parul, Vansh, and Max, Abhinesh, Madhur. Why it is negative? Why the negative number would be there? हाँ, हमने नेगेटिव नंबर का कुछ नहीं किया, वैसे बताती हूँ उसमें भी नेगेटिव नहीं होगा। 500 से जब 500 माइनस करते हो तो 0 आएगा, तो नो नेगेटिव नंबर विल बी देयर। बाकी कहाँ है, बाकी को रिप्लाई नहीं करना। नमन, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पारुल, इशिका, अंशुल, अनुभव, नथिंग। यशांक, दिस इज वेरी बैड, ऐसे नहीं आएगा समझ में कभी भी। भूल जाओ प्रोग्रामिंग आ गई फिर तो, अगर इनिशिएटिव नहीं लोगे तो। लेट्स से आई एम गोइंग टू कर दिया वो कर ओके, where was I? I am going to make a number. A is equals to input, input, enter और number। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना और एरर बताना इसमें क्या एरर है, ठीक। ओहो, 1 second, new file I am going to take. I think screen is visible, the blank screen. A is equals to input, yes ma'am, enter a number, okay, and then I'm going to write B is equals to A by 10, print B, fine. I'm going to run this program, F5। वैसे एरर मैं ही बता दूंगी तो फायदा क्या रहेगा। चलो अभी तक किसी को एरर दिख रही है इस क्वेश्चन में कोई, और दिखनी चाहिए आई गेस। चलो अभी मैं नंबर नहीं डाल रही हूँ, चलो मैंने नंबर डाल दिया 200। What will be the error and what is the error exactly? मैम a is equals to int then ब्रैकेट में इनपुट आएगा। अच्छा क्यों आएगा? क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू देनी है ना उसे। एग्जैक्टली अभी करंटली क्या हो रहा है, हमने जब a is equals to input enter नंबर लिखा, इट मीन्स जो आप नंबर एंटर करोगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। स्ट्रिंग मीन्स सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। अगर वो नंबर एक स्ट्रिंग बन गया तो स्ट्रिंग को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई उसने एक एरर जनरेट कर दी, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर str एंड end।
क्योंकि उसने क्या लिया, b तो इंटीजर है, b में तो आपने वैल्यू स्टोर करी a/10, बट a क्या है, a is a string and we cannot divide any string by any integer. एक इंटीजर को आप स्ट्रिंग से कैसे डिवाइड कर सकते हो? So the error is we have not written int here. Just a second. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर int लिखना होगा and then run. F5 I'm going to write. This time I'm going to write number. Let's say again 200 मैं लिख रही हूँ. इस बार उसने क्या कर दिया, मुझे नंबर जनरेट कर दिया. ठीक है, अब जरा ये बताओ ये कौन सा टाइप की एरर थी? दिस वाज रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर. चलो हैव अ लुक हियर. सो इट विल गिव द रिजल्ट. जब हम whenever we add string, तो क्या होता है, वो concatenate हो जाती हैं. addition means concatenate. ठीक, एडिशन का मतलब क्या होता है स्ट्रिंग्स में, concatenate. 3 को और हेलो को साथ में लिख दिया तो इट विल बिकम 3 हेलो. फाइन. इफ आई राइट ओके 3 asterisk hello, what will happen? ये ये टाइप है can't multiply sequence में non in type of string. मेरी देयर सम मिस्टेक. एक कंकैटिनेशन होता है और एक और होता है, मैं उसको भूल गई हूँ. चलो दैट वी विल टेक केयर ऑफ लेटर ऑन. So these type of questions will come in exam. Second thing, सारे मतलब बैक क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से बुक के. लॉन्ग एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स एंड वो फिलअप्स भी थे अवेलेबल आई गेस, ये भी कर लेना. ठीक, अभी हाँ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. दिस टाइम आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर एंड